Good morning, students. How are you? I'm fine. Myself, Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, in this lecture, just we are going to solve the straight line chapter, and I think this lecture is lecture number 7 from the straight line chapter for class 11. Okay. So, this straight line chapter is the very important chapter for class 11 as well as for class 12. Okay, so if you have the clear concepts regarding the straight line chapter, then I think you will not be stuck in any concept regarding the physics and chemistry subjects also. Okay, so just if you want to gather the knowledge, if you want to be very fast, if you want to be very smart in physics and chemistry and mathematics subject as well, then you should have the clear concept regarding the straight line chapter as well. Okay, just you can see just everywhere that you will face the concepts and different topics and different things regarding the straight line chapter in every subjects. Okay, so just try to gather more and more knowledge from the straight line chapter, and I think if you gather the knowledge more and more from the straight line chapter, then I think you will not be you will not face any kind of problems. You will not confront any kind of hurdles in the path. That means whenever just you will face, whenever just you will study this physics and chemistry subject as well. So I think it is the 7th lecture. So just write the first question. लिख लेते हैं first question. शुरू करो. Find the equation of the line passing through the point. Find the equation of the line. Find the equation of the line passing through the point. Passing through the point. एक point से pass होता है, ठीक है, passing through the point, -3,5 and perpendicular to the line joining 2,5 and -3,6. 2,5 and -3,6. That means, according to this question, this required line is passing through the point -3,5. Required line means which line is going to be found after a long calculation. So this required line passing through the point -3,5. It is sure, and this particular line is perpendicular to the another line, and the joining points are given. Just draw the figure. So this is the required line. Okay, this line is perpendicular to another line, and this lines endpoints are given. 2,5 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये. Okay, and this line passing through the point -3,5. Passing through the point -3,5. Now you need to find the equation of this line. Just आपको निकालना है equation of this line. इसका आपका end points given है. ये जो line है ये -3,5 पॉइंट से पास होता है, and most importantly this line is perpendicular to this horizontal line. Okay, so just give the name A, B, C, D. Okay, just try this line here. AB perpendicular to C. Okay, according to the question we know that. Okay, now A 2,5 and B -3,6 are the endpoints of the given line. So if you have this perpendicularity condition, that means whenever just you will see this perpendicular lines conditions, then I think two lines will be perpendicular. दो लाइन perpendicular होगा, that means ऐसे दो लाइन perpendicular होगा. कब? When these two lines will be perpendicular. Actually, their slopes multiplication will be -1. Okay, this is the proper condition for this perpendicularity. Okay, so before getting this m1 mt equals to -1, that means multiplication of their slopes will be -1, we should find the slopes of the individual lines.
ओके अगर स्लोप से हम लोग को पता ना हो तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ये परपेंडिकुलर है, या फिर परपेंडिकुलरिटी कंडीशन कैसे देखेंगे? देख नहीं सकते. फॉर दैट फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द स्लोप्स फॉर द इंडिविजुअल लाइंस एज वेल. ओके सो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन तो ये है आपका. ठीक है, तो एबी लाइन का स्लोप तो हम लोग इजीली यहां से निकाल पाएंगे. सो स्लोप ऑफ एबी, क्योंकि एबी लाइन का स्लोप क्यों निकाल पाएंगे? क्योंकि द एंड पॉइंट सर्किल है. तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्लोप्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. तो y2 माइनस y1, तो ये है x1 y1 x2 y2. तो y2 दैट मींस ये y2 माइनस y1 6 माइनस 5 एंड माइनस 3,2 माइनस 3 माइनस that means 1 by minus 5. That is ultimately 1 by 5. Okay, so that means the slope of AB line is minus 1 by 5. Okay, so when a line is perpendicular to this line AB, then the slope of the another line will be what? The reciprocal of this. 1 by 5 का reciprocal हो जाएगा. 1 by 5 का reciprocal क्या होगा? 5 और माइनस साइन, जो भी साइन रहे उसका ठीक ऑपोजिट साइन लिख देना है. अगर यहां पर माइनस है तो प्लस लिख देना है, अगर यहां पर प्लस 1 by 5 है तो माइनस लिख देना है. किसका? जो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालने वाले हैं उसका लिखो. सो स्लोप ऑफ लाइन CD. स्लोप ऑफ लाइन CD. स्लोप ऑफ लाइन CD. स्लोप ऑफ CD क्या होगा? 5 होगा. रिसिप्रोकल कर दिया और माइनस को प्लस कर दिया. नाउ आवर प्राइम टारगेट इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ CD. नाउ इक्वेशन ऑफ CD. अब CD का तुम्हें क्या क्या पता है? स्लोप पता है, दैट मीन्स m पता है, एक पॉइंट भी पता है. तो अगर एक पॉइंट पता है आपको और स्लोप पता है तो कौन सा फॉर्म आपको यूज करना है? यहां पर स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा? y माइनस y1 m x माइनस x1. इस फॉर्म को बोला जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो y माइनस y1 क्या होगा? x1 y1 दैट मींस 5. m क्या होगा? 5 x माइनस ऑफ x1 दैट मींस y माइनस 5x प्लस 15. दैट मींस 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल्स टू 0. सो ये होगा आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन. दैट मींस CD लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में इफ इन द गिवन क्वेश्चन if it was given that in place of perpendicular, parallel lines are there, parallel lines, then obviously whatever the slopes will be for AB, अगर AB का स्लोप -1 by 5 है तब CD का भी स्लोप -1 by 5 ही होगा, because two parallel lines have the same slopes. Okay, so perpendicular में m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है और पैरेलल लाइंस में क्या होता है? स्लोप्स इक्वल होता है, दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होगा. ठीक है, तो एक ही प्रोसेस एक ही है. पैरेलल में स्लोप्स इक्वल लिख दोगे और परपेंडिकुलर में क्या होगा? रिसिप्रोकल कर दोगे और साइन को थोड़ा चेंज कर दोगे, ऑपोजिट साइन यूज कर दोगे. ठीक है, राइट. अच्छा, अब बोलोगे सर ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन जो मिला हम लोग को, फॉर्मेशन. ठीक है, कोई स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करके दीजिएगा. मैं डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं. फॉर्मेशन ऑफ किसका? y माइनस y1 m x माइनस x1. ये जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायग्राम. तो डायग्राम तो नॉर्मली है, x एक्सिस y एक्सिस है और ये दो पॉइंट है, ये एक लाइन है नहीं? तो ये है x1 y1 और ये है, दैट मीन्स ये अगर मैं एक्सटेंड करूं उसको ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होता है? थीटा होता है कि नहीं? ये स्लोप होता है, दैट मीन्स यहां से m इक्वल्स टू tan थीटा यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब ये जो पॉइंट है x, y, ये A B. ओके,
अच्छा अब देखो, लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक्स वाई कोई एक पॉइंट है. नाउ another point x1, y1, दूसरा एक पॉइंट लिया है. नाउ m इक्वल्स टू, तो दो पॉइंट मिल गया. m इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, दो पॉइंट है ना, तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, y2, दैट मीन्स ये y2 है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. सो डायगोनल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m x1 माइनस x इक्वल्स टू y1 माइनस y, है कि नहीं. तो अगर मैं थोड़ा चेंज करूं यहां पर, देखो उसको रिवर्स कर देता हूं, y माइनस y1 लिख देता हूं और इधर m x माइनस x1 लिख देता हूं. तो ऐसे लिखेंगे तो सामने एक माइनस साइन आएगा, दोनों के सामने ही माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली y माइनस y1 m x माइनस x1. ठीक है, ये है फॉर्मेशन मिल गया आपको. ठीक है, हाँ. अच्छा अब आओ जो एकदम स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिखाया गया था. फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था, लिखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लिखो. फर्स्ट जो फॉर्मूला है, एक स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर इसका डायग्राम, इसका फॉर्मेशन कैसा आया, थोड़ा दिखा दीजिए. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिख लो. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2. ये दो पॉइंट से पास होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा. हियर दो पॉइंट्स तो दिया गया, अब जहां पर भी दो पॉइंट्स हैं वहां पर आप लोग स्लोप भी निकाल सकते हैं इजीली. m इक्वल्स टू क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. नाउ y माइनस y1 m x माइनस x1, ये जो है हम लोग देखो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हम लोगों ने ये फिगर ड्रॉ किया था, ये एक्स वाई लिया था मैंने और ये x1 y1 लिया था. ठीक है, उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये मिल गया आपका स्लोप. अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, सपोज यहां पर एक पॉइंट है x2 y2, है कि नहीं. ठीक है, तो ये x2 y2 तो एक ही लाइन के ऊपर है ना, तो ये दोनों पॉइंट यूज करके भी तो हम लोग स्लोप निकाल पाएंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है कि नहीं. ये दोनों पॉइंट यूज करके भी तो हम लोग स्लोप निकाल पाएंगे, नो प्रॉब्लम, एक ही लाइन के ऊपर है. तो दैट मीन्स इस m के जगह में y माइनस y1, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है. ये जो फॉर्मेशन हम लोगों ने प्रूफ किया था, कौन सा पॉइंट लिया था, ये दो पॉइंट लिया था, है कि नहीं. अब हम लोगों ने एक न्यू फॉर्मेशन बनाया, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, करने के बाद एक न्यू पॉइंट मिल जाता है x2 y2. ठीक है, अब इसी लाइन का ही, सेम लाइन का ही स्लोप क्या मिलेगा आपको, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. तो इस m के जगह में एक ही लाइन का इक्वेशन है ना, ये जो लाइन है ये सेम लाइन ही है कि नहीं. तो इस m के जगह में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 नहीं लिख सकते क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हैं. दैट मीन्स एक न्यू फॉर्मेशन आपको मिल गया, y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1. दैट मीन्स ये फॉर्मेशन आप यूज करेंगे कब, जब एक स्ट्रेट लाइन का दोनों पॉइंट्स आपको पता हो. इसका पहला फॉर्मेशन क्या था, ये फॉर्मेशन, ये वाला फॉर्मेशन क्या था कि एक पॉइंट पता होगा, सिर्फ ओनली वन पॉइंट पता होगा और स्लोप पता होगा, m पता होगा. ठीक है, जितना सारे कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है अभी तक, यही फॉर्म हम लोगों ने यूज किया है. अब जो है स्लोप डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा. ठीक है, स्लोप्स क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा, बट क्या गिवन रहेगा, पॉइंट्स गिवन रहेगा, दो पॉइंट गिवन रहेगा, है कि नहीं. डिफरेंस यही है और कुछ नहीं.
ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। जस्ट लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखो, just write the question here. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Find the equation of the line joining the points. Joining the points. कौन सा पॉइंट है? Joining the points -1, 3, -1, 3 and 4, -2, 4, -2, ये दो पॉइंट है। देखो यहां पर कुछ स्लोप्स नॉट गिवन, points are given, 2 points are given. That means if you know the points, actually just I think you can find the slope here. Okay, just if you want to use the slope formation, then you can use, but actually if you know the 2 points, joining points, then you can easily use the direct formation. The direct formation is what? We know that straight line formation is y minus, अभी भी जो हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है, y2 minus y1 by x2 minus x1, यहां पर x minus x1. ओके, सो ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू कौन सा -1, 3 एंड 4, -2 इज, बस यूज कर लो। यहां पर x1 ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। जस्ट इस फॉर्मेशन में आपको बिठा देना है। y माइनस y1, तो y1 देखो क्या है 3, y2 माइनस y1 दैट मीन्स व्हाट, -2 -3 बाय x2 माइनस x1 दैट मीन्स 4 माइनस ऑफ -1, x माइनस x1 दैट मीन्स जस्ट लाइक दैट। सो हर जगह तो xy तो रहेगा ही, xy without using this x and y you can't get the equation of something. Okay, so if you want to get the equation of any figure, any geometrical figure, then x and y components should be there. Okay, so यहां पर क्या होगा, y minus 3 minus 5, देखो -5 और 4 plus 1 that means 5 है कि नहीं, और इधर x plus 1. So I think 5 cancel, y minus 3 यहां पर -1 रहेगा, that means -1 -1, ठीक है। So that means x plus y -3 plus 1 that means -2 equals to 0. ये होगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आपको निकालना है यूजिंग दिस 2 पॉइंट्स, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मेशन। ओके, सो इसको 2 पॉइंट्स फॉर्म बोला जाता है। पहला वाला फॉर्म क्या था, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट स्टार देख रखो उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बोर्ड, वॉट एवर द बोर्ड इट इज, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड the equation of the medians of triangle having vertices a 2,5, a 2,5, b -4,9, -4,9 and c -2, -1. Okay, so that means एक ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है। तीनों वर्टिसेस मतलब ट्रायंगुलर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स होता है, तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है। दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए।
sorry, straight line नहीं, triangle A, B, C. A is what? 2,5. B is what? -4,9. C is what? -2, -1. अब median क्या होता है? What do you mean by median of a triangle? Median means a straight line. Okay, a straight line which starts from a particular point. इस point से एक straight line निकलता है. If this straight line cuts the opposite side in the middle point, that means ये point middle point होगा. Middle point, इसको mid point बोला जाता है. Mid point. Then this line is called median of this triangle. तो ऐसे तीनों पॉइंट से एक एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा ऐसे, ठीक है. तो यहां से भी मिलेगा, यहां से भी एक्शन निकलेगा. दैट मीन्स यहां पर कितना मिडल पॉइंट्स मिल रहा है आपको? ये डी, ये ई, ये एफ. ओके, सो दीज आर ऑल मिडल पॉइंट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. सो दैट मीन्स मीडियन का क्या होता है? ये डेफिनेशन, एक स्ट्रेट लाइन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलता है, निकलने के बाद सामने जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा उस स्ट्रेट लाइन को ठीक मिडल पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. दैट मीन्स बाइसेक्ट करेगा. मिडल पॉइंट में इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट होता है. टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा. ठीक है, तो लिखो गिवन. अब आपको इस तीनों मीडियंस का इक्वेशंस निकालना है. सो गिवन 3 vertices of triangle A 2,5, B -4,9, C -2, -1. Now ABC तो पता है, but D, E, F ये तीनों कोऑर्डिनेट we don't know. बट डी ई एफ ये तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है. ओके, सो नाउ डी पॉइंट मतलब किसका मिडल पॉइंट होता है? ए पॉइंट और बी पॉइंट का मिडल पॉइंट होता है. ओके, सो हियर कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिडल पॉइंट कैसे निकालते हैं? हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है मिडल पॉइंट निकालने का? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. तो यहां पर देखो ए बी है ना, x1 प्लस x2 दैट मीन्स 2 माइनस 4 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 दैट मीन्स 5 प्लस 9 बाई 2. दैट मीन्स -2 -1, कॉमा 7. ये होता है डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, -1, 7. हो गया. सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ई कहां पर दिखाई दे रहा है? ये 2 पॉइंट. फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा. तो डी क्या होगा? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. दैट मीन्स आई थिंक ये 0 होगा, 0,2. ये होगा 0,2. सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये 2 होगा. तो x1 प्लस x2 दैट मीन्स -4 -2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. दैट मीन्स यहां होगा -6 बाई 2 दैट मीन्स -3, 9 - 1 8 बाई दैट मीन्स 4. सो डी ई एफ यहां पर निकल गया. तो यहां पर मीडियंस कौन सा लाइन है? लिखो. सो द मीडियंस आर हियर, द मीडियंस आर हियर. मीडियंस आर कौन सा है? ए एफ, फिर बीई एंड सी डी. ये तीनों मीडियंस है. अब आपको ये तीनों मीडियंस का इक्वेशन निकालना है. नाउ
इक्वेशन ऑफ AF ऑफ AF। देखो A पॉइंट भी पता है, F पॉइंट भी पता है, दो पॉइंट्स मिल गए ना। नाउ यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ AF। ओके, इफ यू नो द पॉइंट्स, the end points, then you can find the equation of the straight line easily. So just formation use karo, y minus y1 y2 minus y1 by x2 minus x1 x minus x1. So AB है ना, so that means ये है x1 y1, तो y minus y1 that means y1 minus 5, y2 minus y1, अच्छा यहाँ पर 4 minus 5 by x2 minus x1 that means minus 3 माइनस 2, और यहां पर x माइनस 2। ठीक है, हो गया। तो बस इसको निकाल लो, y माइनस 5 यहां पर क्या होगा माइनस 1 बाई माइनस 5, और इधर x माइनस 2। ठीक है, हो गया, तो निकाल लो। सो क्या मिल गया, माइनस माइनस कैंसल, 5y माइनस 25 इक्वल्स टू x माइनस 2, दैट मीन्स x माइनस 5y प्लस 23 इक्वल्स टू 0। ये होता है f, ये जो मीडियन है AF का इक्वेशन मिल गया आपको। सिमिलरली वी कैन फाइंड BE एंड CD ऑल्सो। सो इक्वेशन ऑफ BE का इक्वेशन क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, जस्ट कोऑर्डिनेट इधर उधर होगा, पॉइंट्स थोड़ा इधर उधर होगा। सो फॉर्मूला यही दिमाग में रखो, y माइनस y1 दैट मीन्स y माइनस BE है ना, BE कहां पर दिखा जा रहा है, ये BE, y माइनस y1 दैट मीन्स y माइनस 9, फिर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, 4 है ना, माइनस 4, x1 मतलब क्या है माइनस 4, दैट मीन्स y माइनस 9 माइनस 7 बाई 4, और ये x प्लस 4, दैट मीन्स 4y माइनस 36 इक्वल्स टू माइनस 7x माइनस 28। तो यहां से 7x प्लस 4y, और इधर ये साइड चेंज होगा तो ये माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये मिल गया आपको BE का इक्वेशन। सिमिलरली वी कैन फाइंड CD ऑल्सो। सो इक्वेशन ऑफ CD निकाल लो, इक्वेशन ऑफ CD, इक्वेशन ऑफ CD क्या होगा, CD ये y माइनस y1 दैट मीन्स y माइनस y1 दैट मीन्स y1 तो माइनस 1 है ना, तो y माइनस y1, y2 माइनस y1 दैट मीन्स 7 माइनस ऑफ माइनस 1 बाई x2 माइनस x1, ओके, एंड x माइनस x1। सो दैट मीन्स y प्लस 1, इधर 7 प्लस 1 8, और इधर प्लस 1, और इधर x प्लस 2, that means y plus 1 और 8x plus 16, that means 8x minus y plus 15 equals to 0। ये किसका इक्वेशन मिला, CD का इक्वेशन मिला। So according to the question, I think you have to find the equation of all the medians, that means 3 medians। Okay, so here it is, just already found the equation of the medians। Okay, अच्छा यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिख कर रखो, ये तीनों मीडियन देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तीनों मीडियंस, एक ट्रायंगल का तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट में। तो ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड। ठीक है, okay, now if you will be given the question just you need to find the coordinate of the centroid। centroid का coordinate क्या होगा, ये अगर आपको निकालना है, if you want to find the centroid coordinate of this triangle, then how can you find? Here as you have that 3 equations of the medians का तीनों equation आपको पता है। any 2 equations you can solve by elimination method, substitution method, comparing method, cross multiplication method, whatever it is you can use। by solving any 2 equations you can find this equation।
दिस कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट याद रखो, ये फ्यूचर में जरूरत होगा, ठीक है। जस्ट राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना, या बाद में सेंट्रोइड निकालने का क्वेश्चन जो है बहुत बहुत आएगा। इन व्हाट रेशियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो, in what ratio the line joining in what ratio the line joining -1,1 and 5,7 and 5,7 is divided by the line, is divided by the line x plus y minus 4 equals to 0. That means in what ratio, that means आपको ratio निकालना है. So I think if any kind of ratio needs to be found, then I think you only have one concept, and that is the sectional formula. In coordinate geometry, you have the only one formula regarding this ratio, and what it is? Sectional formula. And what the sectional formula? X equals to mx2 plus nx1 by m plus n, and y equals to my2 plus ny1 by m plus n. These are the sectional formulas. Okay. Now draw the figure here. एक लाइन है, ये जो है एक लाइन है, दो एंड पॉइंट्स गिवन है, देखो -1,1 और ये पॉइंट है 5,7। इस लाइन को दूसरा एक लाइन, ऐसे ये दूसरा एक लाइन है, वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन जो है वो गिवन है, x plus y minus 4 equals to 0, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, कहां पर करता है, ये मुझे पता नहीं है। जस्ट यू नीड टू फाइंड द रेशियो, दैट मींस ये इंटरसेक्ट करने के बाद पीसेस तो मिलेगा ना। दैट मींस आपको अगर मैं काटने के बाद तो दो टुकड़ा मिलेगा। अब दो टुकड़े का लेंथ जितना होगा उसको अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं, सपोज आपका यहां से लेके यहां तक लेंथ सपोज 6 मीटर है, अब यहां से लेके पैर तक लेंथ 8 मीटर है, तो रेशियो क्या होगा? 7:8, 7 मीटर और 8 मीटर। तो दैट मीन्स यहां पर अगर मुझे रेशियो निकालना है तो दैट मीन्स ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक लेंथ्स निकालना है। अगर लेंथ मुझे पता हो जाए तो मैं रेशियो भी इजीली निकाल सकता हूं, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। तो लिखो, गिवन द पॉइंट्स कौन सा है, -1,1 एंड 5,7, ठीक है। लेट x plus y minus 4 equals to 0, ये जो लाइन है डिवाइड करता है किसको? इस लाइन को। डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग -1,1 एंड 5,7 इनटू द रेशियो। किस रेशियो में हम लोग नहीं जानते, एज्यूम कर लेते हैं λ:1। रेशियो नहीं जानते हैं हम लोग, एज्यूम कर लिए λ:1। दैट मींस ये जो है λ:1 रेशियो है। दैट मींस अल्टीमेटली ये लैम्डा का वैल्यू हम लोग अगर निकाल लें तो रेशियो भी निकल जाएगा। अच्छा, नाउ रेशियो एज्यूम कर लिया है, दोनों एंड पॉइंट्स भी पता है। नाउ वी कैन यूज दिस सेक्शनल फॉर्मूला। ओके, नाउ using sectional formula x equals to, फॉर्मूला लिखा हुआ है mx2 plus nx1 by m plus n। तो देखो
m और n, ये m और n क्या होगा, m होगा लैम्डा और n होगा 1. सो दैट मीन्स लैम्डा इंटू x2, x2 मतलब क्या होता है 5, प्लस n मतलब 1 इंटू x1 मतलब -1 बाई m प्लस n, दैट मीन्स लैम्डा प्लस 1. तो यहां पर 5 लैम्डा -1 बाई लैम्डा प्लस 1. ठीक है, ये x इक्वल्स टू निकल गया. सिमिलरली वी कैन फाइंड y इक्वल्स टू m y2 n y1 बाई m प्लस n. सो m y2 दैट मीन्स लैम्डा इंटू y2 क्या होगा 7 प्लस 1 इंटू y1 1 बाई लैम्डा प्लस 1. सो यहां से क्या निकलता है, यहां से क्या निकलता है 7 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1. तो ये जो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू निकला, ये क्या मिला तुम्हें, कोऑर्डिनेट्स मिला. किसका कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट में, जिस पॉइंट में आपने इंटरसेक्ट किया था ना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट. तो यहां पर फिगर में जो है वो लिख लो. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला, x इक्वल दैट मीन्स 5 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 कोमा 7 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1. दैट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया. इसको एक काम करो, एक नाम दे दो p नाम दे दो. ठीक है, दैट मीन्स p पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया. हम लोग को टारगेट क्या है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है. तो लैम्डा का वैल्यू एक बार मिल जाए तो लैम्डा इज टू 1, तो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो आपको रेशियो मिल जाएगा. तो अब लैम्डा का वैल्यू कैसे निकाले, तो देखो हियर द पॉइंट p, हियर द पॉइंट p, अब यहां से निकालो. हियर द पॉइंट p लाइज ऑन, हियर द पॉइंट p लाइज ऑन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0. स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है क्या, ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई करता है, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अगर कोई भी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब क्या होता है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, दैट मीन्स यहां पर पॉइंट P क्या है, यहां पर पॉइंट P सपोज 2,3, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, सपोज एग्जांपल. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को x के जगह बिठा सकते हैं, 3 को y के जगह बिठा सकते हैं. वी हैव द राइट. ओके, हम लोग को ये राइट मिल गया है. कोई भी पॉइंट अगर किसी भी लाइन के ऊपर लाई करता है, दैट मीन्स उस लाइन में ऑब्वियसली x और y तो रहेगा. उस x और y के जगह में हम लोग इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है वो हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, सो तो यहां पर P पॉइंट लाई कर रहा है. सो दैट मीन्स दैट इज क्या आएगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता है यहां पर. तो x के जगह कौन सा पुट होगा, ये 5 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस y मतलब 7 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0. देखो x के जगह ये पुट कर दिया, y के जगह ये पुट कर दिया, बस हो गया. सो यहां से 5 लैम्डा एलसीएम ले लो, माइनस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 इंटू लैम्डा प्लस 1 होल डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1. एलसीएम कर लिया है हम लोगों ने, एलसीएम हो गया. तो यहां पर देखो 5 लैम्डा और 7 लैम्डा मिलके हो जाएगा 12 लैम्डा, 12 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इधर हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 4, और इधर लैम्डा प्लस 1 डायगोनली उधर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0. सो इधर ये हो जाएगा 8 लैम्डा और इधर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स 8 लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा 4 है कि नहीं. तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिला, लैम्डा का वैल्यू हाफ, लैम्डा का वैल्यू क्या मिला, हाफ मिल गया, है कि नहीं.
ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू यहां पर हाफ मिल गया। मुझे क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो मैंने क्या लिया था, लैम्डा इज टू 1 लिया था, है कि नहीं। देखो अब लैम्डा नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 तो है, 1/2। अच्छा, ये लैम्डा बाई 1 उसको हम लोग लैम्डा इज टू 1 नहीं लिख सकते क्या, और इधर 1:2, तो बस रेशियो मिल गया ना 1:2। a बाई बी इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a:b, है नहीं। तो वही तो लैम्डा बाई 1 दैट मीन्स लैम्डा इज टू 1, और इधर क्या होगा 1:2। सो यही तो निकालना था मुझे, रेशियो निकालना। तो रेशियो तो हम लोगों ने यही एज्यूम किया था, हो गया 1:2, रेशियो निकल गया, है कि नहीं। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ए रेक्टेंगल हैज 2 ऑपोजिट वर्टिसेस। A rectangle, just write the question. A rectangle has two opposite vertices. Two opposite vertices. 1,2 and 5,5. 1,2 and 5,5. Okay. If the other vertices lie on the line x equals to 3. X equals to 3. Okay. Find the equation of the sides of the rectangle. Find the equation of the sides of triangle. Find the of the rectangle. अच्छा, यहां पर एक रेक्टेंगल है। ओके, रेक्टेंगल का 4 वर्टिसेस होता है, हम लोग जानते हैं 4 कॉर्नर पॉइंट होता है कि नहीं। क्वाड्रिलेटरल मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, 4 साइड रहता है ना। अब 4 साइड है दैट मींस 4 एंगल होगा, 4 एंगुलर पॉइंट्स होगा। तो यहां पर 4 एंगुलर पॉइंट में कोई भी 2 एंगुलर पॉइंट, ऑपोजिट जो 2 एंगुलर पॉइंट्स हैं वो किसके ऊपर लाई करता है, दैट मींस कौन सा पॉइंट है 1,2 और 5,5, ठीक है। और बाकी जो 2 ऑपोजिट पॉइंट्स हैं वो एक लाइन के ऊपर लाई करता है। लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू 3। तो ये रिमेंबर दिस थिंग, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सपोज x इक्वल्स टू 3 दिया गया, ये किस टाइप का इक्वेशन होता है। तो याद रखना, जैसे सपोज x इक्वल्स टू 3 है ना, तो तुम x एक्सिस की तरफ जाओगे, तो जहां पर भी 3,0 पॉइंट होगा उस पॉइंट से सीधा ऐसा एक लाइन होगा, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू 2 है तो ये 2,0 पॉइंट में जाओगे, यहां से एक लाइन होगा। x इक्वल्स टू सपोज 5 है, दैट मीन्स यहां पर 5,0 पॉइंट, यहां से ऐसा लाइन होगा, ठीक है। अगर यहां पर y इक्वल्स टू 5 है तो y एक्सिस की तरफ जाओगे, दैट मीन्स y एक्सिस को तो पॉजिटिव ऊपर है, तो ये 0,5 होगा, तो यहां से ऐसा एक लाइन होगा। इसको पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टीज बोला जाता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जस्ट अभी तक ये याद रखो कि कोई भी एक लाइन का इक्वेशन x इक्वल्स टू 3, इसका मतलब होता है कि x कोऑर्डिनेट 3 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स यहां पर सपोज x इक्वल्स टू 3 जब तुम ड्रॉ करोगे, ये x एक्सिस y एक्सिस है, मैंने बोला था कि 3 इक्वल्स टू 0 पॉइंट में सीधा ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन को ही x इक्वल्स टू 3 रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो है यहाँ पर हजारों पॉइंट होगा ना, यहाँ पर हजारों पॉइंट होगा, है। तो हर एक पॉइंट में देखो x का कोऑर्डिनेट क्या चेंज होगा, क्योंकि x का ये डिफरेंस तो हर जगह देखो सेम ही है, हर जगह सेम है ना। तो ये डिफरेंस अगर सेम है हर जगह, तो x का वैल्यू तो 3 ही रहेगा, y का वैल्यू चेंज होगा। सपोज ये 3,1 हो जाएगा, ये 3,2 होगा, ये 3,3 होगा, ये 3,4 होगा, ये 3,-1 होगा, ये 3, बट x का कोऑर्डिनेट यहां पर चेंज नहीं होगा। सो दैट मीन्स ये याद रखो, कोई भी
ये x इक्वल्स टू 3 मतलब क्या है, x एक्सिस के ऊपर जाओगे, 3 जहां पर मिलेगा 3,0 पॉइंट, वहां पर एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दोगे। अगर y इक्वल्स टू 3 है, सेम y एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट ऊपर जाओगे, दैट मींस 0,3 पॉइंट के ऊपर जाओगे, वहां पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 मतलब x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, और y इक्वल्स टू 3 मतलब है y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके ऊपर हम लोग पूरा एक लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जस्ट फिगर अगर हम लोग यहां पर सोचे, फिगर थोड़ा यहां पर एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, और एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल 4 पॉइंट है, दैट मीन्स 1,2 5,5। अच्छा, सपोज 1,2 यहां पर है, ये 1,2 है। सपोज ये 5,5 है। अब सपोज 5,5 सपोज यहां पर है 5,5, ये ऑपोजिट पॉइंट्स है। तो यहां पर एक पॉइंट होगा, यहां पर एक पॉइंट होगा, है कि नहीं। तो देखो ये चारों पॉइंट ज्वाइन अगर मैं करूं, देखो एक रेक्टेंगल शेप मिल रहा है तुम्हें, है। तो ये दो ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब ये जो ऑपोजिट पॉइंट है, बोला गया कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन के ऊपर लाई करता है। वो लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जो होगा, ये दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा। अब दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट यहां पर 3 तो कॉमन है दोनों में, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 के ऊपर है। अब y का हम लोग नहीं जानते, क्या करेंगे, इसको y1 और इसको y2 नाम दे दो। नहीं जानते हैं ना, तो क्या करें, तो दे देते हैं y1 और y2। तो दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट, दैट मीन्स ये एक देखो डायगोनल मिल गया ना, रेक्टेंगल का एक डायगोनल है ये, और ये दोनों ज्वाइन करके दूसरा एक डायगोनल मिलेगा। ठीक है, तो एक नाम दे देते हैं। तो a ये होता है b, ये होता है c, और ये होता है d। ठीक है, अच्छा अब आओ हियर a 1,2 and c 5,5 are two opposite vertices of rectangle, and another pair of opposite vertices are क्या मिला, 3,y1 and 3,y2। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल का दो डायगोनल होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये डायगोनल, ये क्या पॉइंट होगा, दो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं। अच्छा, बस अब है यहां पर लिखो, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, वी नो दैट diagonals of rectangle bisect each other. That means ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना, रेक्टेंगल ओरिजिनल शेप तो ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है, तेरा नहीं होगा, सिर्फ सीधा होगा ऐसे। ठीक है, ये दोनों डायगोनल रेक्टेंगल का होता है। ये दोनों डायगोनल जो है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दैट मींस मिडिल पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो दैट मींस ये जो पॉइंट है, मिडिल पॉइंट होगा किसका, दोनों डायगोनल का। ये डायगोनल का भी ये मिडिल पॉइंट होगा, ये डायगोनल का भी ये मिडिल पॉइंट ही होगा, है कि नहीं। बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट बोला गया ना, तो दैट मींस ये अगर पता ना हो आप लोगों को, साइड में नोट देके लिख के रख सकते हो। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये नोट देके लिख के रख सकते हो। सो दैट मींस ये डायगोनल का मिडिल पॉइंट जो होगा,
ये डायगोनल का भी मिडल पॉइंट एक ही होगा। तो लिखो सो मिड पॉइंट ऑफ एसी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखो यहां पर 1 प्लस 5/2 मिडल पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ऐसे ही तो है कि नहीं। तो दैट मीन्स क्या मिला 6 3 7/2, ये एसी का मिड पॉइंट होगा, है कि नहीं। एसी का होगा मिड पॉइंट। अब बीडी का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बीडी का मिड पॉइंट क्या होगा, बीडी ये क्या होगा 3 प्लस 3/2 y1 प्लस y2/2। सो दैट मीन्स यहां पर 6 दैट मीन्स 3 और इधर y1 प्लस y2/2। ठीक है। तो यहां पर ये जो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे किसी तरह ये y1 और y2 का वैल्यू मिल जाए, y1 और y2 का वैल्यू मिल जाए, तो मुझे हर एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं जो भी करूं क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो आवर प्राइम टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y1 एंड y2। ठीक है, ये दिमाग में रखें। अब मैंने बोला था क्या, सॉरी ऐसा नहीं, ये मिडल पॉइंट ये ऐसे। सो दैट मीन्स ये दोनों मिडल पॉइंट जो है वो क्या होता है, वो सेम होता है, ये सेम होता है ना, है। सो दैट मीन्स यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है देखो सेम आ गया ना, और यहां पर ये जो y कोऑर्डिनेट्स हैं इसको इक्वल लिख सकते हैं। सो y1 प्लस y2/2 इक्वल्स टू 7/2, 2 कैंसिल। तो यहां से देखो y1 और y2 का एक रिलेशन आपको मिल गया इक्वल्स टू 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रख दो। y1 और y2 का वैल्यू निकाला है ना, तो इसलिए हम लोगों ने y1 y2 रिलेटेड एक इक्वेशन निकाल लिया। अब जो है कोशिश करेंगे कि y1 और y2 रिलेटेड और एक इक्वेशन मुझे मिल जाए, तब हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी मेथड अप्लाई करके y1 और y2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हियर वी नो दैट, और भी हम लोग जानते हैं, और क्या जानते हैं, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होता है। वी नो दैट बोथ डायगोनल्स लेंथ आर सेम, दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होता है रेक्टेंगल के लिए। ठीक है। सो दैट मीन्स AC इक्वल्स टू BD लिख सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, तो AC निकाल पाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। लेंथ कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में आपने क्या होगा शायद। AC that means this one. I think you were supposed to solve this length of the straight lines, length of the line as well, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and the whole root is there also. Okay, so SE x2 minus x1, that means 5 minus 1 whole square and 5 minus 2 whole square, and BD क्या मिलेगा, BD x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो यहां पर देखो नाउ दोनों के ऊपर रूट है, रूट कैंसिल कर सकते हैं, रूट कैंसिल कर दो। यहां पर 4 स्क्वायर और यहां पर 3 स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर तो 0 और इधर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दैट मीन्स 16 plus 9 equals to y2 minus y1 whole square. That means 25 equals to y2 minus y1 whole square. That means y2 minus y1 equals to plus minus 5, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से दो केस मिलता है, y2 माइनस y1 एक बार प्लस 5 और y2 माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस 5, दो इक्वेशंस हैं, है कि नहीं। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 तो है ही आपके पास, टारगेट है y1 और y2 का वैल्यू निकालना।
Now solving 1 and 2. Now solving 1 and 2. अब सॉल्व कर लो. Now solving 1 and 2. Now solving 1 and 2. ठीक है, बस 1 and 2 क्या मिला? y2 प्लस y1 इक्वल्स टू 7 और दूसरा है y2 माइनस y1 इक्वल्स टू 5. ये कैंसिल कर देते हैं. 2y2 इक्वल्स टू 12. दैट मीन्स y2 इक्वल्स टू 6. अगर y2 इक्वल्स टू 6 है देन 6 प्लस y1 इक्वल्स टू 7 है ना, तो y1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. तो बस y1 और y2 का वैल्यू मिल गया ना, 1,6. So the points B 3, y1 मतलब क्या है? 1 and D 3, 6. बस BD मिल गया. ओके, अब 1 और 3 सॉल्व करके भी y1 और y2 का दूसरा कुछ वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं? बात एक ही है. आपको तो इक्वेशन निकालना है, तो एक स्ट्रेट लाइन का तो हजारों इक्वेशंस तो नहीं निकलता है. सो नाउ तो BD मिल गया ना. नाउ इक्वेशन ऑफ AB. अब हर एक साइड का इक्वेशन निकालना है आपको, है कि नहीं? तो ए पॉइंट क्या दिया हुआ था? पिक्चर मैंने मिटा दिया. ए पॉइंट 1,2 था, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, इधर थोड़ा लिख लेते हैं, इधर थोड़ा ड्रॉ कर लो. है ए पॉइंट क्या है? 1,2. बी पॉइंट क्या है? 3,1. सी पॉइंट क्या है? 5,5. और डी पॉइंट क्या है? 3,6. ठीक है. अब हर एक साइड्स का इक्वेशन निकाल लेना है. तो इक्वेशन ऑफ ए बी, ए पॉइंट भी पता है आपको, बी पॉइंट भी पता है आपको. नाउ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? बस y माइनस y1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1. बस यूज कर लो. y माइनस y1 ए बी, y माइनस y1 क्या होगा? 2. y2 माइनस y1 दैट मीन्स 1 माइनस 2 बाई 3 माइनस 1. x minus x1 that means x minus 1. So y minus 2 इधर minus 1 by 2 x minus 1. So twice y minus 4 minus x minus minus plus 1. It means x plus twice y minus 5 equals to 0. ये मिल गया आपका AB का इक्वेशन. तो ऐसे ही AB का इक्वेशन ऐसे BC का भी मिलेगा. ये C है, ये D है, तो BC का भी मिल जाएगा, CD का भी मिल जाएगा, AD का भी मिल जाएगा. सब पॉइंट्स तो आपको पता ही है, फॉर्मूला तो सेम ही यूज करना है आपको. तो सिमिलरली वी कैन फाइंड BC, CD एंड AD ऑल्सो, है कि नहीं? निकाल पाएंगे या फिर मैं करके दूं यहाँ पे? आई थिंक यू कैन डू इट. आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर. सिमिलरली फाइंड BC, CD, AD equations. Okay, that will be your homework. ठीक है, निकाल लो. एक ही तो बात है, फॉर्मूला तो सेम ही यूज होगा, जस्ट कोऑर्डिनेट इधर उधर होगा, है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. So enough for today. Okay, so I think in this video we have solved a lot of questions regarding the straight line chapter, and all the questions are very very important for the board exams. Just remember my word, each and every questions are very very important for the board exams, that means your final exams. And for the entrance studies, this type of concepts are very very important. Whatever the concepts are being used and the various solutions, that are also important for the JEE main and advanced level exams also. So I think you should remember, and you just you have to stock all the concepts and all the things which I think are being perceived from my lecture and from the different books as well. Okay, so just keep it in, keep this thing in your mind, and that will be useful for your future. Okay,
So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Just till then, stay safe and stay healthy. And just if you like my lectures, then subscribe, like and share my channel. Thank you very much and bye. Jai Hind.